नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत कराऊं पहले एक नजर डाला वार्ता री मुख्य खबर माथे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में अनुसंधान काम ने आसान बनावा खातर नीतिगत सुधार विषय माथे प्रेस वार्ता ने कर्या संबोधित। कया स्पेस इकोनॉमी भारत की तरक्की में निभावेली अहम भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक समेत कई विकास कामारो कर्या शिलान्यास। कया के स्टेडियम में खेल सुविधा मारो विस्तार होबासु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी होवेला तैयार। श्री केदारनाथ धाम में गुप्त काशी जारियो हेलीकॉप्टर गोरीकुंड कने वियो दुर्घटनाग्रस्त। जयपुर पायलट समेत 7 यात्री की मौत। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हादसा माटे जतायो दुख। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म बाड़मेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री कर्या समीक्षा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनूरा सेंथली गांव में अभियान के तहत कार्यक्रम में लियो हिस्सो। और पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय वेवासु प्रदेश का कई जिला में भी बिरखा। तापमान गिरना से लोगों ने भीषण गर्मी से मिली राहत। और अब एक खबर विगतवार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कया कि स्पेस इकोनॉमी भारत की तरक्की में अहम भूमिका निभावेली। मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली रा मीडिया सेंटर में अनुसंधान काम ने आसान बनावा खातर नीतिगत सुधार विषय माथे प्रेस वार्ता ने संबोधित कर्या। इन दौरान वे कया कि स्पेस में निजी क्षेत्र की भागीदारी घणो अचोखो कदम है। वे कया कि हम नवाचार माथे फोकस कर रहा हाँ और वैश्विक मापदंडा माथे खुद ने पुगाणो है। केंद्रीय मंत्री कहा कि भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गयो है। And the PMO, this would not have been possible without the cognizance of the Honorable Prime Minister. But as all of us know, Prime Minister is known to have the capacity to break many taboos of the past. In fact, this government has also done away with as many as 1,600 rules in the past. And I have been a witness to that because I also deal with the DOPT. And so this is also in the same spirit that we are going ahead. And incidentally, this is also the time when the government is completing 11 years of its being in the office. And as India moves from a service-driven economy to an innovation-driven economy, we have no other option but to focus on innovation. And focusing on innovation is no longer only the business of the Science and Technology Ministry or the Science or the Ministry of Education. It's in fact the whole of government's concern, whole of nation's concern. And as the Honorable Prime Minister has always been emphasizing whole of government, whole of science, whole of nation approach, I think this is also in keeping with that. And therefore, this is imperative on those of us who are part of the government to allow as much freedom as possible to the young innovators to realize the flight of their ideas. Because when we are looking forward to play a global role, and now that we have moved over to the 4th economy from the 10th economy that we were 11 years back, and now hope to be in another 3 years rank 3 and then moving on, I think we'll have to follow the global strategies, global parameters, and our benchmarks have to be related to the global benchmarks, so we can no longer rest or take satisfaction on what others have done within domestically, and we have done better than that. So in order to do that, we also need to make sure that within the framework given to us, with exercising all the integrity at our command, we try to give as much freedom as possible for the innovation to grow. And you must have realized the intent of this government over the last 10 years, some of the most unexpected decisions taken which were not even demanded for, like for example opening the space to the private sector, and also this year the announcement to open the nuclear sector. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट और जिम हॉल समेत कई विकास कामारो शिलान्यास कर्या। कोटा विकास प्राधिकरण कानीसु करीब 4 करोड़ की लागत से विकास काम करवाया जा रहा है। इन मौका माथे लोकसभा अध्यक्ष कहा कि श्रीनाथपुरम स्टेडियम में खेल सुविधा ने
और बत्तो विस्तार होबासू 8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी तैयार वे सकेला। वे कया कि कोटा में डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सिटी रो भी निर्माण होवेलो, जिनसु खिलाड़िया ने एक छत्र नीचे ही सगली सुविधावां मिलेली। एक छत के नीचे सारी खेल सुविधाएं होंगी और उसको स्पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खेल हैं वो सारे खेल की सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को मिल जाए, उसके साथ उनको ठहरने की सुविधाएं मिल जाए, ताकि हम इस हाड़ौती संभाग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर सकें। आज के प्रतिस्पर्धा युग में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा में स्पोर्ट सिटी के निर्माण की गति को बढ़ाया जा रहा है। कोटा का ये श्रीनाथपुर स्टेडियम जो अपने आप में स्पोर्ट गतिविधि का एक बड़ा केंद्र है, आने वाले समय के अंदर यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक भी बनेगा और जितनी भी खेल की सुविधाएं हैं वो खेल की सुविधाओं का विस्तार भी होगा, ताकि हम आने वाले समय के अंदर कोटा में हर क्षेत्र के अंदर खेल की सुविधाओं का विस्तार करके लोगों को अधिक स्वस्थ, अधिक देशभक्त, चरित्रवान बना सकें। धावक है उनके लिए सिंथेटिक ट्रैक है जिसमें वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। पूरे राजस्थान भर से यहाँ खिलाड़ी आते हैं और निश्चित रूप से माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का और हम सभी लोगों का प्रयास है कि कोटा शहर की ग्रामीण प्रतिभाएं जिनके अंदर काफी क्षमताएं हैं वो यहाँ पर आकर अपना अभ्यास कर सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपना देश का नाम रोशन कर सके। ये स्थान हरा भरा हो, स्वच्छ हो, इस और प्रयास है और नगर निगम, केडीए इन संस्थाओं को लेकर और साथ में जन जागरण अभियान के द्वारा पूरे कोटा शहर के अंदर जितने भी पार्क हैं उनको स्मार्ट पार्क बनाने का प्रयास है, मोहल्लों को स्वच्छ और स्मार्ट मोहल्ले बनाने का प्रयास है। अब डबल इंजन की सरकार है, जो भी सपने हैं और जो भी अपेक्षा है सिर्फ कोटा ही नहीं अभी तो पूरी हाड़ौती के जन ने अपने मस्तिष्क में, जहन में सोच रखी है, उन सबको अमली जामा पहनाने का माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के नेतृत्व में प्रयास चल रहा है। व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, इस कोटा शहर को हम हरियाला शहर बनाएं जिसकी वजह से निश्चित ही प्रदूषण से राहत मिले। पहले जब यहाँ पे ये जो ट्रैक बन रहा हुआ ना 400 का, ये भी पहले सीसी वाला ही ट्रैक था। तो इसमें घूमने करने से क्या है कि सभी की जवान हो या बुजुर्ग हो उनके घुटने में जोर पड़ता है। ये घूमने के लिए लचक रहना चाहिए ग्राउंड में, तो वो नहीं थी। तो ऐसा यहाँ बिरला जी घूमने खुद ही आया करते थे। तो उन्होंने जब देखा ना खिलाड़ियों के लिए कि वास्तव में इसमें एक तो पानी बढ़ता है और एक जिसको बनाने से खिलाड़ियों को एक तो अच्छा कंपटीशन हो सकेगा और सुविधा मिलेगी, बरसात के दिनों पानी नहीं पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बाहर वाले ट्रैक को जो 1 किलोमीटर का है लगभग, उस ट्रैक पर भी चल के देखा तो ट्रैक सीसी का है। तो हम जैसे पुराने घूमने वाले लोगों ने उनसे निवेदन किया कि साहब जिस तरह 400 मीटर का आपने ट्रैक किया है, बाहर वालों को भी किया जाए, बाहर वाले ट्रैक को भी जो लगभग 1 किलोमीटर का है। तो इससे क्या सभी घूमने वालों को घुटने में जोर नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा और स्टूडेंटों को लिए 1 किलोमीटर की रेस करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए बिरला जी जो कर रहे हैं ये स्टूडेंटों को और बुजुर्गों को सबको ध्यान में रखते हुए उनको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयास किया गया है और सिंथेटिक ट्रैक पर आने से एक माहौल बनता है, आदमी को मोटिवेशन मिलता है कि वो कोई एक हटके काम कर रहा है। तो ये कोटा वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात है और उनके एक स्वस्थ जीवन के लिए एक प्रेरणादायक कदम। श्री केदारनाथ धाम सु आज सवारे गुप्त काशी जा रही एक हेलिकॉप्टर गोरीकुंड कने दुर्घटनाग्रस्त हुई गयो। हेलिकॉप्टर में सवार जयपुरा पायलट समेत 7 यात्री मौत हुई की। घटना री सूचना मिलता ही मौका माते राहत और बचाव रा काम शुरू कर दियो गयो। घटना रे पछे उत्तराखंड रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलिकॉप्टर सेवा 2 दिन खातर स्थगित कर दी है। वे दुर्घटना माते दुख व्यक्त करता थका कहो कि यात्रियारी सुरक्षा वणारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूजी कानी राजस्थान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े इन हादसा माते गहरो दुख जतायो है। वे हादसा में घायल हुआ लोगों ने जल्द ही ठीक व्यवहारी कामना करी है। उत्तराखंड में केदारनाथ के गौरीकुंड खर की पहाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 लोगों की मौत हो गई।
आज सुबह 5:30 बजे गुप्तकाशी स्थित आर्यन हेली एविएशन का हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए निकला था। गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर गौरी माई खर्क नामक स्थान में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने कहा कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। सभी शवों को बरामद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में महाराष्ट्र के श्रद्धा राजकुमार जायसवाल और एक बच्चा काशी, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल, उत्तराखंड के विक्रम, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी और तुष्टि सिंह और पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान थे। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। चारधाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। एहतियातन उपाय के तौर पर डीजीसीए ने पहले ही चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर संचालन की आवृत्ति कम कर दी है, फ्रीक्वेंसी कम कर दी है, निगरानी बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई के लिए संचालन की समीक्षा भी की जा रही है। डीजीसीए ने कहा है कि दुर्घटना की जांच एएआईबी द्वारा ही की जाएगी। उत्तराखंड में के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअली उच्च स्तरीय बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, यूसीएडीए के सीईओ, गढ़वाल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई आज बाड़मेर रात दौरा माथे रह्या। इन दौरान वे जिला मुख्यालय माथे स्थित कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों साथे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री समीक्षा करिया। इन दौरान मंत्री बेढम वर्षा जल संग्रहण और पर्यावरण संरक्षण खातर बत्ता सु बत्ता पौधारोपण करवा बारा निर्देश दिया। साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में 32 सु 32 जन भागीदारी सुनिश्चित करवा रोकियो। बैठक में जिला कलेक्टर टीना डाभी, विधायक आदुराम मेघवाल समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रिया। इनसु पहला दोनों मंत्री बोर चालनान गांव पुगर अहमदाबाद विमान हादसा पीड़ित जयप्रकाश रा परिजना से मुलाकात करने वाला ने सांत्वना दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज झुंझुनू जिला में कई कार्यक्रमों में भाग लेना। इन दौरान वे जिला रा नवलगढ़ ब्लॉक रा सेंथली गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सों लियो। इन मौका माथे मंत्री गहलोत अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ वरुण देवरी पूजा अर्चना करी। इन पछे वे एक बरगद पेड़ नीचे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक करी। वे अधिकारियों ने जल और पर्यावरण संरक्षण खातर जन जागरूकता बढ़ावा माथे जोर दियो। ये मैसेज देने के लिए कि जो राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है वृक्षारोपण का, पौधारोपण का, तो हम लोग अगर पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हमें उसकी वास्तविकता महसूस होगी, उसके खुले वातावरण का एहसास भी होगा कि अगर कहीं गर्मी के मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात में अगर लाइट नहीं भी होगी तो हम खुले वातावरण में पेड़ के नीचे बैठ के भी अपना सुचारू काम जो है, दैनिक काम जो है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये मैसेज देने के लिए मैं सांकेतिक रूप से आज इस बरगद के पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे बैठक का आयोजन किया। इसमें सारे अधिकारी थे और सबने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है कि हमने पहली बार किसी पेड़ के नीचे इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन रखा है। सब जिले के अधिकारी हैं, उपखंड के अधिकारी हैं, सब लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ में और हमने जनता को भी साथ रखा, इसमें जनता की बात को भी सुना है और सरकार की योजनाओं के बारे में समीक्षा की और वो बंद कमरे में नहीं होकर जनता के सामने हुई है। तो जनता के बीच में एक नवाचार भी हुआ है और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि बंद कमरे की बजाय जनता को साथ में लेकर के जनता के लिए जो योजना सरकार चलाती है उसकी समीक्षा रिपोर्ट क्या है, वो कहाँ तक पहुँची है, कैसे उसका इम्प्लीमेंट होता है,
तो जनता के बीच में रह करके जनता को जोड़ करके इस प्रकार के अभियान जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। निश्चित ही इससे फायदा भी होता है, लोग मोटिवेट होते हैं कि हम भी आने वाले समय में एक पेड़ मां के नाम अभियान है उसका हिस्सा बन करके उसको आगे बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसને લેર જયપુરા લોગામાં ખાસો ઉત્સાહ દેખણે મિલ રહ્યો है। अठेरा योग संस्थानाમાં યોગાચાર્યના માર્ગદર્શનમાં लोग યોગનો અભ્યાસ कर રહ્યા है। मौका माथे योगाचार्य राजेश सैनी बताया कि नियमित योगाभ्यास खातर व्यक्ति शरीर ने स्वस्थ रख सके है। योग ने लेर मां का संवाददाता मनीष शर्मा योगाचार्य राजेश सैनी से करी खास बातचीत। आओ देखा हाँ इंटरपट में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, इसको लेकर के राजधानी जयपुर में भी जो है योगाचार्य और योग साधकों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ हैं योगाचार्य राजेश सैनी जी, उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन इस बार हो रहा है और इसमें धूमधाम से तैयारियां चल रही है। मोदी जी ने जब इसकी शुरुआत करी तब ये जन जन तक पहुंचा है। पहले शहरों तक सीमित था, एजुकेटेड लोग हैं वहाँ तक सीमित था। अब धीरे धीरे गांव के ग्रामीण परिवेश में भी इसका विस्तार हुआ है और एक घर घर तक योग की अलग जगह है, जिससे कि हमारा देश स्वस्थ रहे, जिससे हमारी देश की उन्नति हो। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत ही एक अच्छा काम किया है, जो आज इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, यानी हमारा देश ही हमारा परिवार नहीं है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। ये हमारे ऋषि मुनि भी कहते आ रहे हैं। सभी स्वस्थ रहें, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, हमारे भारत की ये संस्कृति पूरी दुनिया में फैले और सभी मनुष्य जाति स्वस्थ रहे, यही हमारे बुजुर्गों का भी और हमारे ऋषि मुनियों का भी कहना था। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें लोगों के पास में समय बहुत कम है, तो ऐसी कुछ योगिक क्रियाएं होती हैं जिसको आम आदमी कुछ मिनटों में कर सकता है, या कोई विशेष योग ऐसा है जिसको लेकर के आप लोगों को अपील करना चाहेंगे? समय भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई, समय हम जिनसे पूछते हैं कि समय बोला समय नहीं है हमारे पास, तो उस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ आसन मैं बोल रहा हूँ वो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ताड़ासन है, आप कोणासन है, कुछ सूक्ष्म क्रिया है उससे पहले करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। कटी शक्ति विकासक क्रिया है, स्कंद चक्र क्रिया है, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया है, आँखों की कुछ सूक्ष्म क्रिया है, कुछ आसन है जैसे पश्चिमोत्तानासन है। आम आदमी जिसे पता नहीं है कि योग किस तरह से शुरू करना है, वो किस तरह से एक नई शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से कर सकते। हमारा जो शरीर है वो बताता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। जब हमें किसी आसन को करने में दिक्कत परेशानी आ रही है उसको हम न करें, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, शरीर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है वो हम करें। इससे पता लग जाएगा कि हम उस आसन के लिए, हमारे लिए वो आसन सही है। और फिर आपको संशय शंका लगे तो आपको ऐसे गुरु मार्गदर्शन मिले, उनसे भी आप फिर गाइडेंस ले सकते हैं। कि सभी नियमित अभ्यास करें और ये हम एक दृढ़ संकल्प करें मन में कि आने वाले 21 जून से पहले जिस उत्साह से हम अभ्यास कर रहे हैं, हम अगले 21 जून में और बेहतर तैयार हों, हम में और बदलाव आए, अच्छा बदलाव आए और हम नियमित रूप से आधा घंटा कम से कम हम अभ्यास बनाने का संकल्प लें और हम स्वस्थ रहें और आदर्श बने, जिससे और हमसे दूसरे लोग भी सीखे कि हाँ ये योग कर रहे हैं, हम भी अब योग करेंगे, वो भी ऐसे दृढ़ संकल्प करें। हमारे योग में लिखा हुआ है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं करवाएं हम। अगर स्वतः अगर 2 साल का बच्चा भी कर रहा है तो करने दीजिए, उसमें उसको नुकसान नहीं हुआ। पर हम कहीं एक्स्ट्रा खींचतान कर रहे हैं, हम वो न करवाएं। और चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 100 साल के बुजुर्ग हो, सभी कर सकते हैं। ये थे योगाचार्य राजेश सैनी जी, जिनका कहना है कि 21 जून को हम सभी मिलकर के योग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें और देश को नई तरक्कियों के मुकाम पर लेकर के जाएं। जयपुर से मेरे सहयोगी केदार प्रसाद के साथ मैं मनीष कुमार शर्मा, डीडी न्यूज। बांसवाड़ा तलवाड़ा पंचायत समिति में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय कानीसु आयोजित 15 दिवसीय प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सोनी,
पीओ टीएडी अरुणा डिंडोर, कृषि विभाग रा उपनिदेशक डॉक्टर दिलीप सिंह यादव समेत कई लोग मौजूद रिया। कार्यक्रम में सरकार कानीसु जनजातीय लोगारा कल्याण खातर 17 विभागा में संचालित योजनावारा बारा में जानकारी देनी की। सारी विस्तृत आयोजित होंगे। इसका उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायत अरवाड़ा में, जिला बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिला स्तरीय जो समारोह आयोजित किया गया, इसमें जो विभिन्न 17 विभागों के जो अधिकारी यहाँ शामिल हुए और जो कार्यशाला चल रही है अभी भी। धरती आबा जैसा नाम से बताया गया है, ये धरती आबा का अर्थ है फादर ऑफ अर्थ, की धरती का रखवाला। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम जो शुरुआत की है, अभी 15 जून से 30 जून तक कार्यक्रम चलेगा और संबंधित विभागों के अधिकारी गांव में, जो हमारे बांसवाड़ा जिले में 1030 चयनित गांव हैं, उनमें शिविर लगाए जाएंगे और शिविर में इन विभिन्न विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ रहेंगे और जो योजनाओं की जो जानकारी देना और सामाजिक और आर्थिक चेतना से संबंधित काम किए जाएंगे। पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसमें 18 विभाग जुड़े हुए हैं, जैसे ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग है, चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, आयुर्वेद विभाग है। इन सभी विभागों की अपने अपने लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों को ये 5 साल में पूरा करेंगे। कृषि विभाग है तो पक्के आवास का निर्माण करना है जैसे, और सड़क का निर्माण करना है। ये सारी योजनाएं इसमें शामिल हैं। इसको मूल रूप में जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए माननीय मोदी जी का ये अभियान है। जनजातीय समाज के लिए 15 देश का प्रत्येक वह गांव जो जनजाति गांव की श्रेणी में आ रहा है, वहां एक शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार 17 विभागों को इस कार्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। जिन विभागों की योजनाओं से जो वंचित वर्ग रह गया है जनजाति समुदाय का, उन समुदाय के कार्य किए जाने हैं, जिसमें प्रमुखता से वे कार्य जैसे आधार कार्ड से वंचित व्यक्ति का आधार कार्ड बनाया जाना है, राशन कार्ड किसी परिवार के पास में नहीं, उसका राशन कार्ड बनाया जाना है, जिस परिवार के बिजली का कनेक्शन आज तक नहीं है उसको लाइन से विद्युत कनेक्शन या सोलर ऊर्जा के द्वारा उसको लाभान्वित करना है। प्रदेश में राज्य सरकार चिकित्सा सुविधाओं ने घणो चोखो बनावा में जुटोड़ी है। इन्हीं तहत डीडवाना कुचामन जिला में भी चिकित्सा सुविधाओं विस्तार करियो जा रही है। राजस्व उपनिवेशन सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी आज कुचामन जिला अस्पताल परिसर में कई विकास कामा रो लोकार्पण करिया। इन मौका माथे वे अस्पताल रा विकास कामा में सहयोग देवन वाला भामाशाह और संस्थावां ने सम्मानित करिया। इन मौका माथे मंत्री विजय सिंह चौधरी कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता दूर दराज क्षेत्र में भी उच्च स्तरीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करावारी है। कार्यक्रम में पीएमओ डॉक्टर वीके गुप्ता, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, पुलिस अधीक्षक अरविंद विश्नोई और कुचामन विकास समिति रा अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा समेत कई लोग मौजूद रिया। आज कुचामन जिला अस्पताल के अंदर सरकार द्वारा और भामाशाह द्वारा विभिन्न कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को और हमारे भामाशाहों को, जिन्होंने इस जिला अस्पताल के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करते हैं कि भामाशाह अपना पूरा सहयोग इस जिला अस्पताल पर बनाए रखे। सरकार की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि जिला अस्पताल के अंदर हर काम होंगे, चाहे डॉक्टर की समस्या हो, नर्सिंग स्टाफ की, और नर्सिंग स्टाफ में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी जाएगी सरकार द्वारा। यहाँ इस हॉस्पिटल में 1,41,00,000 दानदाताओं द्वारा कार्य कराए गए, उनसे हॉस्पिटल की सुविधाओं में विस्तार हुआ है। हॉस्पिटल के वार्ड जो पहले उसमें घुसने की निशानी को आज हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह सारे वार्ड डेवलप है, आईसीयू डेवलप है, राज्य स्तरीय रामाश्रय वार्ड दानदाताओं द्वारा तैयार किया गया है, नवीनीकरण कराया गया। जो जनरल वार्ड है, मेल और फीमेल वार्ड, तो सबको नवीनीकृत करके बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बनाया गया है। बाकी सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, सभी तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं।
जयपुर में यूनियन फुटबॉल क्लब कानिसू चाल रहा ग्रीष्मकालीन केम्परो आज समापन वही गयो। शहरा रामनिवास बागरा ग्राउंड नंबर 2 माथे आयोजित समापन समारोह में आईपीएस प्रफुल्ल कुमार प्रतिभागिया ने पुरस्कार प्रदान किया। समारोह में बढ़िया प्रदर्शन करने वाला प्रतिभागिया ने मेडल और प्रमाण पत्र दिया गया। क्लब रा समन्वयक और आयोजक अभिनव स्वामी बतायो कि क्लब कानिसू हर बरस टाबरारी खेल प्रतिभा ने निखारवा खातर इन शिविर रो आयोजन करियो जावे है। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़वासू अस्पताल में हीट वेव रा मरीज पूग रिया है। इन खातर चिकित्सा विभाग सगला सरकारी अस्पताल में विशेष प्रबंधन करिया है। राजधानी जयपुर जयपुरी अस्पताल में मरीजा रा इलाज खातिर चिकित्सका री राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाई, कूलर, पंखा, ठंडो पानी और छाया समेत दूजी चिकित्सा सुविधावां मुहैया करवाई जा रही है। चिकित्सक लोगों ने तेज गर्मी से बचवारे साथ ही खान पान माथे विशेष ध्यान देवारी सलाह दे रिया है। ये आजकल ये लू, तापघात, भयंकर गर्मी होना जो आजकल अपन टेम्परेचर चेंजेस देख रहे हैं, इसको देखते हुए आजकल लोगों के अंदर उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की बेहद कमी हो जाना, घबराहट होना, पेशाब बहुत पीला आना, बार बार पेट में जलन रहना, ये सब काफ़ी बीमारियां देखने को मिल रही है। आमतौर पर उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या भी हमारे पास काफ़ी बढ़ गई है कंपैरेटिव टू द अदर टाइम। जब पहले के समय के मुकाबले आजकल ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, खांसी जुकाम के भी मरीज आ रहे हैं, उल्टी दस्त के भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं। तो इस समय बचाव सबसे ज़्यादा यही किया जा सकता है कि ज़रूरत होने पर घर से बाहर निकलिए। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो तरल पेय पदार्थ जिनको अपन बोल सकते हैं, छाछ, दही, लस्सी आप ले रहे हैं, गन्ने का जूस ले रहे हैं, ये सब लिक्विड डाइट आप ज़्यादा लें। आपको महसूस हो रहा है कि हाँ शरीर में पानी की कमी है, ORS का सेवन करें। कभी भी आपको लगे कि समय से ज़्यादा उल्टी दस्त वगैरह हो रहा है तो नज़दीकी चिकित्सकों से जाकर मिलें। और बचाव ही उपचार है ज़्यादातर तो। और फिर भी यदि आपको लगता है कि ये समस्याओं से आप ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं तो अस्पताल आइए। खबर मौसम सु है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास रा क्षेत्र में एक परिसंचरण तंत्र बनवासू और एक पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होना सु राजधानी जयपुर सहित प्रदेश रा कई जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हुई है, जिनसु लोगों ने तपन भरी गर्मी सु राहत मिली है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो श्रीगंगानगर और चूरू में सर्वाधिक तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। वटे बीकानेर में 46, सीकर में 43.8, पिलानी में 43.6 और राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो है। मौसम विभाग रे मुजब आज उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में तेज आंधी चालन रे साथे साथे बारिश होबारी संभावना है। वटे 20 जून से बारिश की गतिविधियां में तेजी आ सके है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में अनुसंधान काम ने आसान बनावा खातर नीतिगत सुधार विषय माथे प्रेस वार्ता ने कर्या संबोधित। कया स्पेस इकोनॉमी भारत की तरक्की में निभावेली अहम भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक समेत कई विकास कामारो कर्या शिलान्यास। कया के स्टेडियम में खेल सुविधामारो विस्तार होबासु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर रा खिलाड़ी होवेला तैयार। श्री केदारनाथ धाम में गुप्त काशी जारियो हेलीकॉप्टर गौरीकुंड कने वियो दुर्घटनाग्रस्त। जयपुर रा पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हादसा माटे जतायो दुख। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म बाड़मेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की कर्या समीक्षा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू रा सेंथली गांव में अभियान रे तहत कार्यक्रम में लियो हिस्सो। और पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होना सु प्रदेश का कई जिला में बेरखा तापमान गिरना सु लोगों ने भीषण गर्मी से मिली राहत। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थान की खबर रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।